अब्बा पिता, अब्बा पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंपता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सानिध्य भी आप सब लोगों को प्राप्त। Please be seated. Dear respected Bishop Swamiji, dear confreres and my dear sisters, blessed are the pure in heart, for they shall see God. It is very true of Brother Pius Calcutta the Swede, an embodiment of simplicity, care and concern. Brother Pius Calcutta was a man pure in heart, committed to his responsibility mostly as a farmer. He was unique in his life. We are here together to bid farewell to this simple soul whom God has lovingly called him to his eternal glory. Born in Rajakanpur parish, Rourkela, to a large family of 8 brothers and 3 sisters, Brother joined the Society of the Divine Word in the year 1958 in Palna. He made his first vows in Palna in 1961 and final vows in 1982 in Palna. Brother Pius began his missionary life from Catholic Castle Palna as a farm in charge. During his 60 years of religious life, he must be the only one who was committed to his profession as a farmer throughout his life, except for 1 year in press. Brother served over 20 years in Sanavat, in Sendua, 2 years in Sebastian, indoor as farm in charge. In 2 occasions, 2 times, 8 years in Palna as farm in charge, and over 23 years in St. Thomas Seminary in Mogu. Just 1 year he extended his services of the press. Brother was assigned to St. Joseph's Home in 2019. He was a man of conviction because after his final vows in 1961, he was not very convinced of taking his final profession, and he took a leave just to reflect on and to discern his occasion more concretely. And he was with the Father Chess in Sanavat for almost 20 years. And in 1981, he took his final profession. 1982, a man of conviction. He wanted that his commitment should be total
And he, during his discernment, removed all the doubts he had in his mind. And thus, I call it, he was a unique person, unique brother. Brother Pius, a man of simplicity. Brother did not have many things in life. He did not demand many things for him. He was totally committed to his responsibilities, owning very little things for himself. Brother Pius, a very caring and concerned person. We all here can vouch to this statement. He was a person of great concern and care. We would see him serving with the Geneva food at times, sitting with him and spending time talking and cherishing the old memories. Whenever he comes to the chapel, he opens first the windows, and if he see in the lavatory, he closes the vessels. He is concerned about all that, and picking up things and keeping them safe. Maybe, because of his Alzheimer's, the sickness, but however, all these expressions are flowing out from his basic nature of care and concern for the confreres and the society. A farmer par excellence. He rendered his services as a religious missionary, as a farmer throughout his life. When some people consider farming as an inferior job, Brother Pius gave dignity to this profession by lovingly dedicating his whole life as a farm in charge. A man filled with the Spirit, Brother Pius, in spite of his Alzheimer's sickness, frequented to the chapel and spent time in prayer. His gentle smile as a sign of a spirit-filled person. He had that gentle smile on his face, always. A man satisfied with the little things. He spent long years in communities, meaning that he was totally a communitarian man. He did not give trouble to his companions, and all his companions enjoyed his community life. Dear Brother Pius, we thank you for all the dedicated service that you rendered in various capacities, especially as farm in charge, in the Society of the Divine Word, serving the province, and we thank God for you, for all that services you have rendered, and God called you to his eternal abode without giving any trouble to anyone. And a beautiful death you received from God, and we thank God for that. May the loving God forgive all your failures and grant you eternal rest. प्रभु के सामने आइए, ब्रदर पाइस के और हमारे पापों के लिए, कमियों के लिए, प्रभु से और भाई बहनों से क्षमा मांगते हुए सब मिलकर पढ़ें। हे भाइयों बहनों, मैं के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने बड़े दिनों से अपने वस्तु से अपने भाई से बहुत बात किया है, इसलिए मेरी दुआ है
Hymn number M10, page number 178. कभी दूर है तू कभी पास है, सदा तेरा रहूं यही आस है। जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाँव है। कभी दूर है तू कभी पास है। इस दुनिया में क्या रखा है, घर तुझसे ही मैं दूर हूँ। इस दुनिया में क्या रखा है, घर तुझसे ही मैं दूर हूँ। भवसागर से इस जीवन में पतवार तू ही किनार है। कभी दूर है तू कभी पास है, सदा तेरा रहूं यही आस है। जीवन की यही हकीकत है, कहीं धूप है कहीं छाँव है। कभी दूर है तू कभी पास है। स्तुति आराधना उपजती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना उपजती है, आशीष देखो नीचे आती है। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। मेरा प्रभु कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार आज के पवित्र सुसमाचार। पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। मार्था ने यीशु से कहा, प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं मरता। मैं जानती हूँ कि अब भी आप ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। यीशु ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूँ कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान में जी उठेगा। यीशु ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो कोई मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूँ कि आप वह मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आदरणीय फादर चौमन, फादर्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, आप सभी को मेरी संवेदनाएं। जैसे फादर चौमन ने हमें याद दिलाया, ब्रदर पायस बहुत ही सरल स्वभाव के, नम्र स्वभाव के और अपने कर्तव्यों के प्रति सदा निष्ठावान थे। हम उनके धन्य जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं।
था, तुम अपने माथे के पसीने से अपनी रोटी खाओगे। इस हुक्म को हमारे किसान भाई बहन निरंतर अपने जीवन में लागू करते हैं। हमारे भाई ब्रदर पायस भी वैसे ही प्रभु के उस हुक्म को अपने जीवन में सार्थक बनाया। हम सबको उन्होंने खिलाया, चाहे वो सनावत की खेत से हो, मऊ की खेत से हो, हालदा की खेत से हो। उन्होंने हम सबको रोटी खाने के लिए पैदावार किया। अपने पसीने से न सिर्फ वो रोटी खाई, हम सबों के प्रेम के प्रति वे हमको भी खिलाया। वो हमारा अन्नदाता है, हम बोल सकते हैं। जब दिल्ली में किसान लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम याद करते हैं कि सभी किसान हर रोज संघर्ष करते हैं। उनका जीवन संघर्षमय है। वो जमीन से लड़ते हैं, सूरज से डरते हैं, पानी से लड़ते हैं और इस संघर्ष के कारण मानव जाति को अन्न खिलाता है। हम ब्रदर पायस को धन्यवाद देते हैं उनके इस कठिन मेहनत के लिए। उन्होंने अपने जीवन में प्रभु की आशीष पाते हुए एक धर्मसंघीय जीवन बिताते हुए सेवा का एक जीवन अपनाया है और प्रभु ने उन्हें लंबी आयु प्रदान किया और अंत में किसी को भी न बताते हुए चुप कैसे चले गए। संत योसेफ का वर्ष है। सुसमाचार में हम देखते हैं संत योसेफ वैसे ही एक सरल और मेहनती संत था जो परिवार के भरण पोषण के लिए योगदान दिया और उनका जीवन भी चुप्पी से भरा। कुछ शब्द बोलते हुए योसेफ को हम पाते नहीं। वैसे ही ब्रदर पायस अपनी जिम्मेदारियां पूरी करके चुपके से हम सबसे विदा हो गए। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, ब्रदर पायस को धन्यवाद देते हैं उनकी इस महान सेवाओं के लिए। उन्होंने किसान के उस जीवन को सम्मान प्रदान किया है और हम सबको अन्न खिलाते हुए प्रभु के कार्य करने के लिए हमें ताकत दिया है। आज के पहले पाठ में रोमियों के नाम पत्र में हमने पढ़ा है, सुना है, चाहे हम जीते रहे या मरे प्रभु के लिए। पायस के जीवन में भी ये सार्थक है। जीते समय भी वे प्रभु के लिए जिए और मरे भी प्रभु के लिए। जैसे सुसमाचार यूहन्ना में हमने सुना, प्रभु ने बताया पुनरुत्थान और जीवन में है। जो मुझ में विश्वास करते हैं जीता है वो कभी नहीं मरता। हाँ, जरूर शारीरिक जीवन समाप्त हो गया है लेकिन आत्मा जीता है। प्रभु के साथ जी उठने के लिए हमारी आशा है। हम जरूर वयस के पूर्ण जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें उनके लिए कि हम एक दिन उनके साथ जुड़े रहें, स्वर्ग धाम में हम भी पहुँच सकें। प्रभु हमारे और उनके सभी पापों को अपने क्रूस के बलिदान से मिटा दें और हम सबको उनके दर्शन के लिए सौभाग्य प्रदान करें। आइए हम उनकी आत्मा के लिए प्रार्थना करें। मुझे विश्वासी परमेश्वर की दया से स्वर्ग का आनंद स्वरूप प्राप्त करें। दीप आरती
बिना प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारा ये बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारे दानव पर कृपा दृष्टि डाल। प्रेम के इस महान संस्कार में हम तेरे पुत्र के साथ एक हो जाते हैं। ऐसी कृपा कि तेरे सर्वप्रभु पायस को उनकी दिव्य संगति प्राप्त हो जाए। वो युगायुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। यही है संसार की मुक्ति, मानव जाति के जीवन और मर्दों के पुनरुत्थान। इन्हीं के द्वारा स्वर्गदूतों की सेना तेरे प्रताप की आराधना करती और तेरे सदा सर्वदा हर्ष मनाती है। इन्हीं के स्वर में स्वर मिलाकर हम भी उल्लास को तेरा गुणगान करते हुए करते हैं। पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। धन्य वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। सर्वोच्च स्वर्ग में होशाना। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तो सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बनी चढ़ती रहे। इसीलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारी उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम युग इसका यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से पीओ, क्योंकि वह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था कारक, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में ये करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसीलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के उत्तर दुखों प्रताप में पुनरुत्थान अस्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बात बोलते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर्णे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा को आनंद उपहार स्वरूप मुझे चढ़ाए
कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शिक्षकों, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलिसियों को विश्वास तथा प्रेम में रहने की कृपा करो। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर दया से द्रवित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। अपने सेवक ब्रदर पीयूष की सुधि ले, जिनको तूने इस लोक से अपने यहाँ बुला लिया है, इन्हें यहाँ वर दे कि जैसे ही बपतिस्मा में तेरे पुत्र की मृत्यु के सहभागी हुए थे, वैसे ही उनके पुनरुत्थान का भी सौभाग्य प्राप्त करें। उस दिन प्रभु यीशु हमारे मृत शरीर को फिर से जीवित करेंगे और हमारे नश्वर शरीर को अपने तेजोमय शरीर के अनुरूप बना देंगे। हमारे मृत भाई बहनों को और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वास बने रहे। और उन सबों को भी जो तेरे प्रति विश्वास बने रहे, दयापूर्वक अपने राज्य में प्रवेश पाने दे। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं। वहाँ हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहेंगे। उस समय ही हमारे ईश्वर तो हमारे सब आंसू पोंछ देगा, क्योंकि हम तेरा सामर्थ्य यथार्थ दर्शन करेंगे और तेरे अनुरूप बनकर अनंत काल तक तेरी स्तुति करते रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इनसे संसार को सभी सुविधा प्राप्त होते हैं। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति
सदा एकता प्रदान कर। तू युगायुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कर दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते हैं। ये रोटी नहीं प्रभु का शरीर है, ये दाख रस नहीं प्रभु का रक्त है। ये रोटी नहीं प्रभु का शरीर है, ये दाख रस नहीं प्रभु का रक्त है। नहीं प्रभु का शरीर है, ये दाख रस नहीं प्रभु का रक्त है। पे यीशु जीवन दिया, हम पापियों को पावन किया। सूली पे यीशु जीवन दिया, हम पापियों को पावन किया। अब्बा की इच्छा को पूरा किया, संग संग हमेशा हमारे रहा। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। आओ प्रभु हमें आशीष दो, संपन्न कर दो हमारे जीवन को। ये रोटी नहीं प्रभु का शरीर है, ये दाख रस नहीं। हम प्रार्थना करें कि प्रभु, हमने तेरे सेवक ब्रदर वाइस के लिए ये पास का संस्कार चढ़ाया। हमारी प्रार्थना सुन और ऐसी कृपा कर कि यह तेरी ज्योति और शांति के निवास में प्रवेश कर सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सारी सांत्वना के ईश्वर ने अपार प्रेम से मनुष्य की सृष्टि की। वही ईश्वर अपने एकलौते पुत्र के पुनरुत्थान द्वारा विश्वासियों को पुनर्जीवन की आशा प्रदान करे।
ईश्वर हम जीवितों को पापों की क्षमा और मृत विश्वासियों को ज्योति तथा शांति का निवास प्रदान करें। आमीन। और ये दृढ़ विश्वास करते हैं कि क्रिस्त मृतकों में से सचमुच जी उठे, इसलिए हम भी क्रिस्त के साथ सदा सर्वदा जीवित रहे। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीष प्रदान करे। प्रभु हम लोग जाने प्रभु की सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। हे प्रभु करुणा सागर, तो दीन दुखियों का आश्रय है और इन्हें सांत्वना देता है। और तू अपने दुखी जनों को दिलासा दे। तू ही जीवन दाता और मृत्यु विजेता है, अब सदा सर्वदा और अनंत काल तक। मृतकों को प्रभु शांति दे, आनंद जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। अंतिम दिन में हे प्रभु महिमामय तो जब आए, तेरे दाहिने ओर रहो, संतोष आशीष पाए। प्रभु को शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु को शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। प्रभु तेरी सूली को नतमस्तक हो आराधे। सदैव सबका उत्थान है, सदैव में ही जीवन है। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। आकाश भी सबके मृत जीवन पाने दे। जिंदे मुझ में रहे, आश्रय सबका होने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृतकों को प्रभु शांति दे, अनंत जीवन पाने दे। मृत लोगों के
स्वीकार करना प्रभुवर मेरा विश्वास होगा सामने तेरे दासों का बलिदान सारा
पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। This is a time to pay the last payment of homage to the thanks, and we will close the coffin of the hymn and then proceed to Anna. I also like to express my gratitude towards the community of St. Joseph's who cared for him towards the end of his life, and especially Sister Shira and Sister Alice who cared when giving him medicine and food and so, and also preparing him for this beautiful service. Thank you, sisters, and also our sisters, neighbor sisters are there, Sister Patricia and Nancy. Thank you, sisters, and also I'd like to thank Father Babu who brought the opportunity, and all those who have helped along the way. I also thank Father Cyril for providing the ambulance and doing all these things, and then Bada community for preparing the grave and all the preparations, Saprakash community for the videography and the online transmission of this funeral service. And at the end, and I like to especially mention Bishop Swamiji. Bishop is always at our service, always whenever there is a need, Bishop is willing, and thank you so much for being with us and praying for the prayers and doing this last journey. Now, all those who like to come to Panda, we will make arrangement for being all those who can come, please join us, and let's continue to pray. जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया, जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। दिल का मैला था मैं अकेला, दिव्य ज्योति से अब भरमाया। दिल का मैला था मैं अकेला, दिव्य ज्योति से अब भरमाया। छोड़ जगत को अब मैं आया, तेरी दिशा प्रभु अब मैं आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया, जीवन मैंने अपना त्यागा,
तब चरणों में अब आया। स्वीकारो भगवन मैं आया, पाप भरा ये जीवन लाया। स्वीकारो भगवन मैं आया, पाप भरा ये जीवन लाया। रिश्ते नातों को बिसराया, स्वर्गांगन में अब मैं आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। देवदूतों के संग में लाया, देवदूतों के संग में लाया। पाप पुण्य है जो भी कमाया, जीवन मैंने अपना त्यागा, तब चरणों में अब आया। तब चरणों में अब आया, तब चरणों में अब आया। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, 3 दिनों तक कब्र में रहकर तूने अपने भक्तों की कब्र पवित्र की, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि यद्यपि हमारा शरीर पृथ्वी के गर्भ में रखा जाता है, हम तेरे समान ही जी उठेंगे। हमारे भाई ब्रदर पयस करकटा का शरीर इस कब्र में उस घड़ी तक विश्राम पूर्व पड़ा रहे जब तक जो पुनरुत्थान और जीवन है इस भाई को पुनर्जीवित और आलोकित न कर दे। हे प्रभु, स्वर्ग राज्य में ये तेरे मुखमंडल की ज्योति से सुशोभित रहे, जहां तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई ब्रदर पयस को इस संसार से बुला लिया है, इसलिए हम इनका शरीर उस मिट्टी में रख रहे हैं जिससे यह बनाया गया था। मृतकों में से प्रथम क्रिस्त जी उठे। हमारा विश्वास है कि क्रिस्त हमारे नश्वर शरीर को पुनर्जीवित कर अपने महिमामय शरीर के समान बना देंगे। हम लोग अपने भाई ब्रदर
पायस के लिए प्रभु से निवेदन करे कि वह इनको अपनी परम शांति के निवास में ले जाए और इनकी देह को अंतिम दिन पुनर्जीवित करे। हे सर्वशक्तिमान पिता, तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त को मृतकों में से जिलाया। हम पूरे भरोसे के साथ तुझसे प्रार्थना करते हैं, अपने विश्वासियों को मुक्ति प्रदान कर। अपना निवाक्य है, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे भाई ब्रदर पायस को बपतिस्मा में अनंत जीवन की जमानत मिली थी। आप अपने संतों के संगति में इनका स्वागत कर। इन्होंने क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन का भोजन ग्रहण किया था। इनका शरीर अंतिम दिन पुनर्जीवित हो जाए। हम अपने मृत भाई बहनों, संबंधियों और उपकारों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उन्हें पुण्य कर्मों का इनाम दे। जितने लोग पुनरुत्थान की आशा में शांति के नींद सो रहे हैं, वे सब तेरे प्रत्यक्ष दर्शन करें। जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाते हैं, उन्हें तू कृपा करके सहायता और दिलासा दे। हम सबको जो तेरी उपासना करने के यहाँ एकत्र हुए हैं, तू अपने प्रतापमय राज में बुला ले। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से यह उत्तम प्रार्थना करें, जिसे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें सिखाया और हमारे मृत भाई ब्रदर पायस बार बार बोले थे। हे पिता हमारे, माता मरियम अपने सेवक ब्रदर पायस की आड़ रक्षा करे। प्रणाम मरियम, और संत मरियम परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बैठाई होवी। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा अपने आशीष हम सभी पर और ब्रदर पायस पर और इस कब्रिस्तान पर बरसाए। आमीन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उस बगिया में जहाँ टपकी बूंदे लहू की, चलते जाना उस बगिया में जहाँ टपकी बूंदे लहू की।
चलते जाना उस बगिया